being a Sunday, all of you have come here, so we are very grateful to you all. But today, our spokesperson from All India Congress Committee, Alka Lamba, has come here. Okay, so, and the incident that took place yesterday has made us to take this urgent press conference. Meet Ms. Alka Lamba, AICC spokesperson, Sonal Maronkar, and Royla from South District General Secretary. Now, today, it was very urgent for us to speak on the issues of women. All of you have seen that when I heard yesterday from social media that one minor girl was raped and then she tried to commit suicide by jumping from the 3rd floor. That has really sent shock all over Goa. It's really sent shivers down the spine of each and every woman and man of Goa. Let me tell you that this Goa has been turned into a criminal hub. And who is responsible for this? It is the BJP government. It is the Home Minister of BJP government, and who is no other person than Mr. Sawant. He is the one who is responsible for this state of affairs of Goa. Dr. Pramod Sawant has transformed Goa totally into a criminal hub. This government has no right to remain in power. There is complete collapse of law and order in the state of Goa. On every 5th day, you will find either a rape, a murder, or molestation of a young girl or a minor girl. We urge Your Excellency to take serious note of the deteriorating law and order situation and rise in criminal activities and dismiss the government immediately for its failure to maintain the law and order in the state. CM Sawant has failed to create fear in the minds of these pervert people, those who are committing either murder or rape. So it is he who should be wholly responsible for all that is taking place for making Goa into a criminal hub. Let me just let you know all the facts. How many murders, how many rapes that have taken place in Goa. The police department is yet, now as a recent case 3 months back, the police department is yet, that is Siddhi Naik's case, is yet to come to the conclusion of the mysterious death of a young girl, Siddhi Naik, whose body was found in Kalangut Beach on 12th August 2021, just 3 months back. The government did not take any corrective measures. Second point is, the government did not take any corrective measures, nor the government has done any efforts to bring the criminal to book. The government did not take any corrective measures to control the criminal activities in Goa after coming to power. They have encouraged criminal mafia, drug mafia, beggar mafia in the state of Goa, which has dented the image of this peaceful state that is Goa. I'll place before you some facts, some incidents which occurred in the state in last 1 year. Gang war killing, one person at Santa Cruz on 21st June 2020. Murder of jeweler Swapnil Warkir in Margao on 3rd September 2020. Murder of Vilas Mehta, a resident of Parvari, by setting him ablaze on 15th October 2020. Brutal double murder of 65-year-old contractor Mingle Miranda and his 85-year-old mother-in-law at Fatada on 8th March 2021. Rape of minor girl on 26 June 2021 at Bicholi. Suicide of 3 family members on 29 June 2021 at Zuari Nagar, alleging police harassment. Daylight murder of Amar Naik at Bogma on 18 July 2021. Rape of 2 minor girls at Benali Beach by 4 persons on 25th July 2021. Rape incident at Usgaon on 29 July 2021. Abduction of Goa businessman Naveen Patel on 4th August 2021
demanding ransom. Rape of 13-year minor girl at Sattari and robbery in a jewelry shop at Mapsa on 11th August 2021. Body of a person found at the Kandolin beach on 19th August 2021. Kidnapping and rape of a minor girl from Sattari and mysterious deaths of 2 Russian women in North Goa reported on 20th and 21st August 2021. Attempt to abduct a young girl at Ponda on 27th August 2021. Horrific incident of a 6-year girl raped of her own father some days back. A viral video of a police constable beating his own wife on the national highway. Body of Irish woman female found on Kandolin beach on 20th August 2021. A day before yesterday's incident in Margao, which took place, a boy stabbed a girl, and that too in broad daylight. This itself shows that people are not scared of this government. People are not scared of law because the law and order of this government has totally failed. So I request His Excellency Mr. Sridharan Pillai that immediately these ministers and the government, the government should be sacked and see law and order, because they have failed in maintaining the law and order of this state. Thank you. थैंक यू बीना जी। और अभी आपके सामने गोवा में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपको हालात बताए, बेहद चिंता पैदा करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से आई हूँ। गोवा को बेहद बेहद सुरक्षित एक स्थान हम मानते थे, लेकिन आज जिस तरह से आंकड़े जानकारी रखी गई वो सच में चिंता और दुख पैदा करती है कि जहां डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है। अब मैं बात करती हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मेरे आगे आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पहुंचे, जिन्हें दिल्ली का ठग कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को उन्होंने ठगा है। मैं दिल्ली की निवासी होने के नाते नहीं चाहती हूं कि हमारे अपने गोवा के लोग इन बाहरी लोगों द्वारा ठगे जाएं। गोवा के एयरपोर्ट से जब मैं लैंड किया, निकली, बड़े बड़े होर्डिंग 2 मुख्यमंत्रियों के थे, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री और एक बंगाल के मुख्यमंत्री। लोकल गोवन कौन है उनका चेहरा? क्या बंगाल और दिल्ली से गोवा को आप चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा, गोवा पूरे देश का सबसे छोटा राज्य है, 40 विधानसभाएं हैं। इसे राजनीति की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, इसे एक्सपेरिमेंटल लैब बनाकर अपने एजेंडे थोपे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बेनकाब करने आई हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, गोवा के लोगों को, पत्रकार साथियों से कहूंगी, ये हेडलाइन मुझे मालूम है, अखबार हो, मीडिया हो, विज्ञापन बेहद जरूरी है। मैं मानती हूं विज्ञापनों से मीडिया हाउस चलते हैं, लेकिन सच्चाई, ये करोड़ों के एड, विज्ञापन आपकी कलम को नहीं रोक सकते। क्योंकि आप गोवा के लोगों का अगर भला चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ओवर 940 करोड़ 940 करोड़ स्पेंड ऑन पॉल्यूशन एड्स। विज्ञापनों पर, प्रदूषण को दिल्ली में खत्म करने के लिए सिर्फ विज्ञापन और एड पर 940 करोड़ खर्च किया गया। और आज अभी राजधानी दिल्ली के लोग जहरीली हवाएं और सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ये अभी के हालात बता रही हूं, राजधानी दिल्ली से आई हूं। गैस चैम्बर बना हुआ है 7 साल में। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पास सिर्फ करोड़ों के विज्ञापन पे खर्च करने के लिए था। अगर यही पैसा ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वायु प्रदूषण पे खर्च किया जाता तो आज बहुत से लोग मात्र एयर पॉल्यूशन की वजह से दम ना तोड़ रहे होते। ये विज्ञापन है। अभी दिवाली का, पिछली 2020 की जो दिवाली गई है, लाइव टेलीकास्ट, भव्य आयोजन, 6 करोड़ रुपए खर्च किए। और आज अभी की जो दिवाली गई है, दिल्ली सरकार टैक्स पेयर के पैसे से 15 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर बड़े एक स्टेडियम में
पार्टी के विधायक, मंत्री और नेताओं में टैक्स पेयर का 15 करोड़ रुपया इस दिवाली पर खर्च किया है। ये आरटीआई से जानकारी मिली है। हमें कोई परेशानी नहीं होती अगर ये तस्वीर दिखाऊंगी। ये ट्वीट किया है, सुजाता जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। केजरीवाल से सवाल करने दिल्ली के लोग उनके पीछा करते हुए गोवा भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, गुजरात भी। जहां जहां केजरीवाल दिल्ली को ठगने के बाद दूसरे राज्यों में ठगी करने जाएंगे, हम ये सवाल दिल्ली के लोग उनके पीछे। क्या लिखती है प्रोफेसर सुजाता? लिखती है डीयू के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के, डीयू के 12 कॉलेजों को के अध्यापकों को महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उनकी दिवाली काली थी क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, पैसा नहीं है। लेकिन 15 करोड़ दिवाली के ऊपर स्टेडियम में भव्य आयोजन करने के लिए पैसा था अध्यापकों के लिए। लोगों की दिवाली काली करके फिल्मी सेटअप लगाकर भव्य राम मंदिर और लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया। लेकिन नीचे लिखते हैं दिल्ली सरकार हाय हाय 12 कॉलेजों की काली दिवाली, प्रोफेसर अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। ये केजरीवाल से मांग रहे हैं। मैं गोवा के लोगों से कहूंगी, आप धोखे में ना रहें, बेहद जरूरी है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा यहां उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, 5 सितारा होटलों में ठहरना, रहना, रैलियां करना, सब टैक्स पेयर का पैसा। क्या गोवा भी चाहता है कि उसके टैक्स पेयर का पैसा गोवा पे ना लगकर ये लोग दिल्ली या दूसरे राज्यों पे लगाए? ये गोवा के लोगों को फैसला करना है। बेरोजगारी के आंकड़े लेकर आई हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, unemployment in Delhi greater than national unemployment rate by 23.5%। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से दिल्ली की बेरोजगारी सबसे अधिक है। अरविंद केजरीवाल जी गोवा के लोगों को, गोवा के अनएम्प्लॉयड यूथ को कह रहे हैं हम आपको रोजगार देंगे। तो दिल्ली के लोगों को 7 साल से आप मुख्यमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? पहला सवाल, 7 साल है ना, यहाँ तो आएंगे तो देंगे, वहां तो आ चुके हैं। 7 साल से कितनों को रोजगार दिया? राष्ट्रीय अनएम्प्लॉयमेंट दर आपसे आप कहीं आगे। दूसरा, उन्होंने कहा हम 3,000 रुपया, 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली के युवाओं को 1 रुपया भी, मैं दिल्ली से आई हूं, दिल्ली का बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, हक मांग रहा है। वो बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार मांग रहा है। लेकिन वहां 1 रुपया भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से मांग करने के लिए मैं गोवा के लोगों को भी कहती हूँ, गोवा के लोग बिल्कुल अगर विश्वास कर रहे हो तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उन्हें कहे जाइए केजरीवाल जी, दिल्ली लैंड करते ही घोषणा कर दीजिए कि दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5,000 देंगे। और जिस दिन वो पहली किश्त मिलेगी, मैं अकेली नहीं, दिल्ली का जितना बेरोजगार युवा है गोवा आकर गोवा के लोगों का धन्यवाद करेगा। क्योंकि यहाँ केजरीवाल का लालच है कि गोवा में उसे वोट चाहिए और गोवा के लोग कहेंगे तो शायद वो वोट के लालच में दिल्ली का भला कर देंगे और दिल्ली के रोजगार मिल जाएगा। क्राइम अगेंस्ट विमेन, अभी बीना जी ने बताया यहाँ पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। भारत की राजधानी दिल्ली में कहते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, पर दिल्ली के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, एलजी को मिलने से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कौन रोकता है? ये पूछना चाहते हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या लिखा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सो ओवर 63% राइज, 63% राइज इन 2021। ये राजधानी दिल्ली है। जो मुख्यमंत्री दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं कर पा रहा, क्या गारंटी है कि वो गोवा में आकर, गोवा में सरकार बनाकर, क्या फार्मूला है, गोवा महिलाओं के लिए सुरक्षित करेगा? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आज हिम्मत नहीं है गृह मंत्री के पास दिल्ली, तो ये खोखली चीजें लेकर आए हैं। एक सवाल के जवाब से आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भाग रहे हैं, चर्च का इश्यू। क्योंकि मैं जब यहां पर आई तो मैंने देखा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि गोवा के लोगों को तीर्थ यात्राओं पर लेकर जाएंगे। मैं आपसे कहूंगी ये धर्म की राजनीति भाजपा की बी टीमों को खास करने के लिए यहां पर बंगाल और दिल्ली से भेजा गया है और ये धर्म की राजनीति अब कर रहे हैं। दिल्ली दंगों की आग में इन्हीं अरविंद केजरीवाल के राज में 2020 में जली है, ये सच्चाई है। अब गोवा में भी आकर आप धर्म की राजनीति करेंगे, मुफ्त के लालच देकर धार्मिक यात्राओं पर ले जाने की बात करेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूं पिछले 3 साल में दिल्ली में कितने बुजुर्गों को आपने तीर्थ यात्राएं करा दी?
और जरूरत क्या है बुजुर्गों के लिए? पर्यावरण, स्वच्छ हवाएं, हमारे बुजुर्ग सांस ले पाए, हमारे बुजुर्ग बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में अच्छा इलाज ले पाए। आप उन्हें मुफ्त तीर्थ यात्रा में भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एजेंडे लेकर दिल्ली के ठग अरविंद केजरीवाल यहां पर आए हैं, मैंने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मेरी दिल्ली मेरे मुख्यमंत्री हैं। वो यहां आकर झूठा वादा करेंगे कुछ भी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें आकर बेनकाब करूं, एक्सपोज करूं और अपने ही गोवा के लोगों को उनकी धोखाधड़ी से बचा पाऊं। चर्च के मामले पर जो दिल्ली के अंदर चर्च तोड़ी गई, उसका जवाब मैं पूछना चाहती हूं। मीडिया ने जरूर पूछा होगा सवाल, क्या जवाब मिल गया? क्या डीडीए की जिस कमेटी ने एमसीडी के साथ मिलकर वो चर्च को लोगों की भावनाएं हर्ट हुई थी, तोड़ा, क्या उसमें आम आदमी पार्टी के 3 विधायक मेंबर सदस्य नहीं थे? क्या उन्हें फैसले की जानकारी नहीं थी? इवन यहां तक हमने देखा कि चर्च से जुड़े हुए लोगों ने जब दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया तो आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने हमारी महिला आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी की, उन पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने के आरोप लगाए और चर्च के टूटे जाने को सही ठहराया। तो मैं गोवा के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, बीजेपी अपनी बी टीमों को, जहां बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, वो बी टीमों को भेज रही है ताकि यहां जो सेक्युलर वोट है, जो कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट है, उसे डिवाइड करके किसी तरह भी यहां पर राहुल गांधी जी हमारे नेता यहां पर आए। आपने सबने देखा, मैं चुनौती देकर कहती हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री में दम हो, चुनौती दे रही हूं, श्री राहुल गांधी जी की तरह लोगों से सीधा संवाद, सीधी बातचीत, उनके दिलों में जो सवाल हैं उन्हें लेकर दिखाएं, उनके जवाब देकर दिखाएं। ये हिम्मत कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी में है। वो आए, सीधा लोगों के बीच में आए, लोगों ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें छुआ, उनसे बात की, उनसे फोटो खिंचवाई, उनसे अपनी दिल की बात की, उनसे अपनी बेरोजगारी की, फिशरमैन हो, हमारे जो भी व्यापार है, टूरिज्म से जुड़ा, सुरक्षा से जुड़ा, उन्होंने बात कही, सवाल किए, जवाब सीधे मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, सिर्फ गुमराह करने के लिए एक दिन के टूर पर आते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में उन्हीं का तस्वीर है, लोकल गोवन एक भी नाम नहीं है। तो मैं गोवा के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, इन ठगों की ठगी का शिकार दिल्ली के हम लोग बुरी तरह से हो रहे हैं। हवाएं जहरीली हैं, यमुना का पानी, एएनआई की अभी वीडियो ट्वीट हुआ है, प्लीज देखिए, सच्चाई है। ये यमुना है, ये भारत की दिल्ली की राजधानी का यमुना की तस्वीरें आज की है, एएनआई ने वीडियो ट्वीट किया है। 7 साल से दिल्ली का पानी, पीने का पानी, आज नोटिस आया है दिल्ली के लोगों को, पीने का पानी अगले 2-3 दिन तक अब नहीं मिलेगा। ये राजधानी दिल्ली में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। किसका राजा अरविंद केजरीवाल पूछना चाहते हैं। 7 साल से यमुना, करोड़ों रुपए यमुना एक्शन प्लान पे खर्च हुए, लेकिन आज ये हालत है। ये क्या देंगे गोवा को आकर, ये गोवा के लोगों को पूछना चाहिए। चुनौती देकर कि अलका लांबा दिल्ली से आई, उस दिल्ली से आई है जहां के आप मुख्यमंत्री हैं, यमुना की तस्वीरें दिखाई, गैस चैम्बर जहरीली हवाएं हो चुकी दिल्ली दिखाई, प्रोफेसर को अपने वेतन मांगते हुए के पोस्टर लेकर रोते हुए दिवाली पर तस्वीरें दिखाई हैं, आपके करोड़ों रुपए विज्ञापन, टैक्स पेयर का पैसे को बर्बाद करते हुए दिखाया है। यहाँ पर आप आकर कितने ठगी करेंगे। ये महिलाओं के हालात हैं। वीना जी ने बीजेपी के राज में बताया, हम दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के राज में बता रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली में नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, रो रहे हैं लोग तनख्वाहों के लिए। पैसा जा कहां रहा है? क्या टैक्स पेयर ने पैसा देना बंद कर दिया दिल्ली में? नहीं, टैक्स पेयर दिल्ली में पैसा दे रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? विज्ञापनों पे जा रहा है, दिवाली के जश्नों में जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने में, धर्म के अंदर राजनीति, राजनीति में धर्म, अब कुछ फर्क नहीं रह गया। मैं आपसे निवेदन करूंगी, पत्रकार साथियों से, मैं इस बंद कमरे में सिर्फ चंद पत्रकार साथियों से बात नहीं कर रही हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है आपकी कलम जब लिखेगी तो जो लिखेगी वो घर घर पहुंचेगा और जो गोवा के लोग दिल्ली के लोगों की तरह ठगी का शिकार नहीं होंगे। और बिल्कुल गोवा के लोगों से कहूंगी, मांग करिएगा, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने संवाद किया, गोवा के लोग सीधा संवाद स्थापित करें।
ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे जन लोकपाल। चुनौती देकर आपके माध्यम से चाहती हूँ, पहली लाइन लिखिएगा और पूछिएगा दिल्ली की अलका लांबा अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में नहीं गोवा में पूछने आई है, क्योंकि आज मेरे मुख्यमंत्री गोवा में हैं। दिल्ली के लोकायुक्त का नाम क्या है? पूछिएगा ये सच्चाई है या नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करनी है, वो 1 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। वो पद खाली पड़ा है, ऑफिस में ताला लगा हुआ है। क्या ये सच्चाई है या नहीं? कहां है दिल्ली का लोकायुक्त? 1 साल से नियुक्ति को ठंडे बस्ते में क्यों डाला है? ये सवाल मैं कहूंगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बात करने यहाँ आए हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा, देखना होगा दिल्ली में क्या है। अभी बीना जी ने मुझे बिल्कुल याद दिलाया है कि जब भारत की राजधानी पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं, लगातार ये गैस चैम्बर बन रहा है, जहरीली हवाएं बन रही हैं। इवन हमारी सोनिया गांधी जी जो 70 के पार हो चुकी हैं, वो यहाँ पर हर साल सिर्फ वो दिल्ली के लिए सिर्फ दिल्ली की जहरीली, और वो सोनिया गांधी जी एक नहीं है, बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से दिल्ली के बुजुर्गों को ऐसे समय पर, या बच्चों को जिनको सांस की बीमारी है, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली छोड़ने पर मजबूर है। गोवा आते हैं, लेकिन अब आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे बीना जी, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि आपके जो कोल माइंस क्या कारणों से, जो वहां पर हम लोग जगह में गए थे वास्को में, वहां पर मैं खुद गई, राहुल जी ने भी वहां गए। वहां पिछड़ा से काली इमारतें, काला धुआं, काली सांसें। मुझे लगता है अगर ये लोग दिल्ली से यहाँ राज करने आएंगे तो ये जो है गोवा भी आपके इस लायक नहीं बचेगा। इसलिए गोवा बचाना बेहद जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा पॉइंट ऑफ से कहें तो मैं उम्मीद करती हूँ ईमानदारी से आपकी कलम चलेगी। अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर हैं, बहुत से दोबारा मुफ्त की घोषणाएं वायदे करके गए होंगे यहाँ से, लेकिन हमने कांग्रेस के आज इस मंच से जो सवाल मैंने दिल्ली के होने के नाते उठाए हैं, उसके जवाब गोवा के लोगों से निवेदन करती हूँ, दिल्ली की मदद करें, दिल्ली के लोगों की मदद करें, वो सवाल पूछें, जवाब मिलेगा, दिल्ली का भी भला होगा और गोवा के लोगों का हम धन्यवाद करने आएंगे अगर वो सारे काम जो यहाँ वायदे किए जा रहे हैं वहां सत्ता में होते हुए अरविंद केजरीवाल अगर करके दिखा देते हैं। धन्यवाद। ये पुरानी बात है पोल्यूशन की, दिल्ली और पोल्यूशन। तो आप कहते हैं क्या आपने कुछ भी अच्छा काम दिल्ली में नहीं किया है? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आपने? मतलब उसने वो जो एजुकेशन की बहुत नहीं, देखिए आप शिक्षा को वायु प्रदूषण से मिला सकते हैं। शिक्षा पे अच्छा काम किया आप कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ वायु प्रदूषण, मैं शिक्षा की किताबें खोल के बैठ जाऊँ तो हवाएं जहरीली, 20,000 मौत, 20,000 मौत हर साल राजधानी दिल्ली में हो रही है। किस कारण? वायु प्रदूषण। हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लोग याद करते हैं क्या किया शीला दीक्षित जी ने वायु प्रदूषण के लिए। उस समय क्यों नहीं होता था बताती हूँ आपको। उस समय फ्लाईओवर्स नहीं होते थे, जाम लगते थे घंटों। शीला दीक्षित जी ने पूरी दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया था। शीला दीक्षित जी ने मेट्रो की शुरुआत की, लोगों को सरकारी ट्रांसपोर्टेशन देना शुरू किया ताकि अपने निजी वाहन कम इस्तेमाल करें। शीला दीक्षित जी ने 1 लाख बसों को जो पेट्रोल डीजल पे थी, डीजल सारा सीएनजी पर लेकर आए। शीला दीक्षित जी ने ग्रीन दिल्ली का नारा देते हुए जितना ग्रीन बेल्ट बना सकते थे वो बनाया। दिल्ली की इंडस्ट्री को शीला दीक्षित जी दिल्ली से बाहर लेकर गई। ये शीला दीक्षित जी ने किया था। ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण आ जाए, लेकिन ये है कि काम नहीं हुए 7 सालों में, काम नहीं हुए हैं। आप एक मुद्दे पर एक सरकार को नहीं चुन सकते हैं। मैं फिर कह रही हूं, उस शिक्षा का मैं क्या करूं जिस शिक्षा के में हम कह रहे हैं, और 20 में दिल्ली दंगों की आग में जल जाती है, लोग मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। आपको हर मुद्दे पर हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आपका भ्रष्टाचार, हर मुद्दों को देखकर एक सरकार चुनी जाती है, खाली एक नहीं। और इन्हें पता है कि ये बीजेपी की बी टीम में बनकर मात्र इसको पूरा एक कम्युनल चुनाव बनाकर धर्म और राजनीति कि आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो वहां पर अलग घोषणा होगी क्योंकि वहां का वोट का अलग नेचर है, गोवा का अलग नेचर है। तो अपनी राजनीति, मैंने कहा प्रयोगशाला, गोवा को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं गोवा के लोगों को कहना चाहती हूँ, साफ संदेश दें, गोवा किसी के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है कि आप आए, प्रयोग करें, गोवा बर्बाद करें और चले जाएं। तो मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।